السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی رفتار بے قابو ہو گئی ہے۔ کورونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد 3 لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے مریضوں کا بڑا اچھال دیکھا گیا ہے۔ 11,929 نئے کیسز کی پہچان کی گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں کورونا کی وجہ سے 311 مریضوں کی جان بھی گئی ہے۔ اب تک 9,195 لوگوں کی کورونا وائرس سے موت ہو گئی ہے۔ 1,54,000 سے زیادہ لوگوں نے اب تک کورونا سے جنگ جیتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 7,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے 3,20,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ نیپالی پارلیمنٹ نے ہندوستان کو ایک دھکا پہنچاتے ہوئے اتفاق رائے سے دستور میں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تاکہ ملک کے نئی سیاسی نقشے کو اپڈیٹ کیا جائے، جس کے ذریعے اس نے سرحد کے 3 اہم علاقوں پر اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ نیپالی کانگریس، راشٹریہ جنتا پارٹی نیپال اور راشٹریہ پرجا تنتر پارٹی کے بشمول اپوزیشن جماعتوں نے غیر معمولی قومی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے دستور کے 3 شیڈول میں ترمیم سے متعلق بل کی تائید کی، جس کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ نیپال کی سرحد پر واقع کالا پانی، لیپولک اور لیمپی یادھورا کے علاقوں کو نیپال کے نقشے میں شامل کیا گیا۔ نیپال کے اقدام پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ہندوستان نے اپنے نئے نقشے میں ان علاقوں کی شمولیت کو ناقابل قبول قرار دیا، جن کے بارے میں نئی دہلی کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستان کے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ نیپال کے ایوان نمائندگان نے ایک دستوری ترمیم بل منظور کرتے ہوئے نیپال کا نقشہ تبدیل کیا ہے۔ ملک میں کورونا کے تیزی کے ساتھ بڑھتے معاملات کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی کابینہ کے سینئر وزراء اور اعلیٰ افسران سے میٹنگ کی۔ اس دوران انہوں نے متعدد ہدایات بھی جاری کی اور حالات پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی تیاریوں کا بھی حکم دیا۔ اس میٹنگ میں کورونا سے نمٹنے کے لیے اب تک کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے علاوہ ان میں کہاں غلطی ہوئی ہے اور کہاں بہتری کی ضرورت ہے، اس پر بھی غور کیا گیا۔ میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، کابینی سیکرٹری، صحت کا سیکرٹری، ICMR کے ڈائریکٹر جنرل اور نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر ونود پال شریک ہوئے۔ کورونا وائرس کے معاملات کی وجہ سے شہریت مخالف قانون NRC اور NPR کے خلاف جاری تحریک کو موخر کر دیا گیا تھا، لیکن اس دوران دہلی پولیس کی جانب سے اس تحریک میں پیش رہنے والے کارکنان کو نشانہ بنانے اور انہیں ہر ممکن طریقے سے ہراساں کرنے کے بعد تحریک سے وابستہ افراد نے اسے دوبارہ شروع کرنے اور اپنی آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا آن لائن پروٹیسٹ کانفرنس کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آن لائن کانفرنس 12 جون کو شروع کی گئی ہے، جو 14 جون تک جاری رہے گی۔ اس دوران تحریک سے وابستہ سیاسی، سماجی اور مذہبی لیڈران خطاب کر رہے ہیں۔ ان میں منوج جھا، امتیاز جلیل، شفیق الرحمان برق اور مرگن گاندھی جیسے لیڈران اور دانشوران کے ساتھ ساتھ دیگر افراد خطاب کریں گے۔ RJD کے MP اور فرقہ پرستی کے سخت مخالف منوج جھا نے پہلے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CAA مخالف مظاہرین ملک کے آئین کی روح کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ بہت مقدس کام تھا، لیکن موجودہ حکومت نے ان سبھی کو دہلی فساد سے متعلق کر کے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس کی سختی سے مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ ان سبھی سماجی کارکنان، جن میں طلبہ کی اکثریت ہے، ان کو رہا کریں اور ان پر عائد کیے گئے مقدمات ختم کریں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسوں میں بے تحاشا اضافے کے دوران ماہرین نے ICMR کی ایک رپورٹ پر برہمی کا اظہار کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کا کمیونٹی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا ہے۔ ان ماہرین نے کہا کہ یہ رپورٹ موجودہ صورتحال کی عکاسی نہیں کرتی اور حکومت سچائی کو قبول کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ ماہرین نے کہا کہ ملک کے کئی حصوں میں کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ وہ اس بات کو قبول کریں تاکہ عوام تساہل سے کام نہ لیں۔ وائرولوجی، پبلک ہیلتھ اور طب کے کئی ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا۔ فوجی سربراہ جنرل MM نروے نے کہا کہ چونکہ جموں کشمیر کی عوام دہشت گردی سے بیزار آ چکے ہیں اور مرکزی زیر انتظام علاقے میں حالات کو معمول پر لانے کے خواہاں ہیں، اس لیے سیکورٹی فورسز نے جموں کشمیر میں حالیہ دنوں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ جنرل نروے نے کہا کہ جہاں تک جموں کشمیر یا ہماری مغربی پڑوسی کا تعلق ہے، گزشتہ ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ IMA انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے بطور جائزہ آفیسر شرکت کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل نروے نے کہا کہ صرف گزشتہ 10 تا 15 دنوں کے دوران ہی 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ سب مرکزی زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے تعاون اور مدد سے ممکن ہو سکا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے معاملوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا جاری ہے، جس میں شاید ہی کوئی شعبہ ایسا باقی ہو جس سے تعلق رکھنے والوں میں کورونا متاثر لوگ نہ پائے جا رہے ہوں۔ گزشتہ روز ملک کی مرکزی وزارت برائے محنت کے 24 ملازمین کورونا متاثر پائے گئے۔ وہیں دہلی پولیس کے ایک ASI کی کورونا سے موت ہو گئی۔ مسلسل ہونے والی اموات سے جہاں ایک جانب دہلی کے کورونا معاملوں کے لیے مختص کیے جانے والے قبرستانوں میں ابھی کافی گنجائش ہے، وہیں دوسری جانب
शमशान घाटों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लाई जाने वाली लाशों की आखिरी रसूमात एक मुश्किल मरहला साबित होती जा रही है। वजारत मेहनत के 24 मुलाजमीन का कोरोना मुतासिर पाए जाने के बाद वजारत की इमारत को 2 रोज़ के लिए सील करके इसे सैनिटाइज किए जाने का अमल जारी कर दिया है। वहीं इन लोगों के राब्ते में आए दीगर 17 अफराद को भी 7 दिन के लिए हाई रिस्क क्वारंटाइन किया गया है। एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तान कोविड-19 की वबा के मुआशी असरात से निपटने की जद्दोजहद कर रहा है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत मईशत में नकदी का बहाव नहीं करती है तो गरीबों का सफाया हो जाएगा और मुतवस्सित तबका नया गरीब बनेगा और सरमायादार मुल्क के मालिक बन जाएंगे। उन्होंने खानगी कंपनी के निकाले गए मुलाजमीन की हालत जार पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने हुकूमत से कहा कि हर गरीब खानदान को फौरी फीकस 10,000 रुपये फराहम किए जाए और अगले 6 महीने लॉकडाउन के असरात से निपटने के लिए इन्हें माहाना 7,500 रुपये दिए जाए। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में औरतों से ज़्यादा मर्दों की कोविड-19 से मौत हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में अमवात के तजज़िये से जाहिर होता है कि मुल्क में ख़वातीन ज़्यादा जोखम में हैं। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से वाबस्ता अभिषेक कुमार के बशमुल कई सियासतदानों ने मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार का तज्जिया करते हुए यह नतीजा अख्ज़ किया है, जिसमें हिंदुस्तान में कोविड से औरतों की ज़्यादा अमवात हुई है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी कांग्रेस पर मुल्क को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टी ज़मींदाराना ख़ानदानी ज़हनियत में फंसी हुई है और इस बात को महसूस करने से खासिर है कि हिंदुस्तान का DNA रवादारी और हम आहंगी से भरपूर है। वज़ीर अखिलेती उमूर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टी के कम इल्म कायदीन को मालूम होना चाहिए कि सबकी खुशहाली हिंदुस्तान की विरासत और तहजीबी अहद है। वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तंज कर रहे थे, जिन्होंने अमेरिकी सिफारतकार निकोलस ब्रन्स के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका जिस खुलेपन और रवादारी का DNA रखते हैं, वहाँ वो इक़दार मादूम हो रहे और इंतशार पैदा करने वाले खुद को कौम परस्त कहला रहे हैं। सियाफाम अमेरिकी के कत्ल के सिलसिले में बरतानवी दारकूमत लंदन में आज पुलिस और एहतजाजियों के माबीन झड़पें हुई, जबकि अवाम की कसीर तादाद ने सरकर्दा शख्सियतों के मुजस्समों को महफूज रखे जाने की हिमायत की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा फुटेज से यह जाहिर हुआ है कि मुजाहिरीन ने लंदन में वाक़ पार्लियामेंट स्क्वायर के पास पुलिस पर खाली बोतलें फेंकी। एक अलहदा वीडियो के मुताबिक एहतजाजियों का एक ग्रुप पुलिस पर मुक्के बरसा रहा है। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस जराये से उसे ये इत्तला मिली है कि बाज़ एहतजाजी हथियारों के साथ लंदन में आए हैं। अरब यूनियन बराए फल्कियात और खलाई साइंस के एक रुकन इब्राहिम अल जरवान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारत में ईद उल अजहा 31 जुलाई जुम्मे को हो सकती है। उन्होंने कहा कि ज़िलहज्जा 1441 का चांद पीर 20 जुलाई को मुत्तहिदा अरब इमारत के वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे देखा जा सकेगा। अल जरवान ने मजीद कहा कि मौसम गर्मा का आगाज़ 21 जून को सुबह 1:44 पर होगा और गर्मियों का मौसम 23 सितंबर 2020 तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हफ्ते को कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए। इस तरह वो मुल्क में कोविड-19 से मुतासिर होने वाले एक और सरकर्दा सियासतदान बन गए हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 से 2,593 जानें गई हैं और 1,35,702 अफराद मुतासिर हो गए हैं। 67 साला गिलानी करप्शन के एक केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो की समाअत में शिरकत के बाद मुस्बित पाए गए। जमेरात को असल अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह शहबाज शरीफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एहतसाब ब्यूरो में पेश होने के बाद कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए थे। साबिक पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी भी हफ्ते को कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए हैं। पाकिस्तान के केसों में इजाफे के ताल्लुक से वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना में फिर एक मरतबा कोरोना वायरस के खैर में इजाफे ने वज़रा व अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों में तशवीश पैदा कर दी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान वायरस के तेज़ी से फैलाव ने न सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद बल्कि कई अजला में दोबारा अपनी मौजूदगी जाहिर की है। सरकारी दफातर में कोरोना वाक़यात मंजर आम पर आने के बाद वज़रा, अरकान मुक़न्नना और आला अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार कर ली है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। कलेक्टर सिद्दीपेट ने भी खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करने का फैसला किया, क्योंकि सिद्दीपेट में कोरोना के केसेस मंजर आम पर आए हैं। बताया जाता है कि हरीश राव ने सिद्दीपेट में वाक़ अपनी क़यामगाह में एक करीबी मददगार में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। तेलंगाना में हफ्ते को कोरोना मरीजों की तादाद में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि एक दिन में जुमला 253 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जो कोरोना वबा फूटने के बाद से अब तक के एक दिन के सबसे ज़्यादा केसेस है। आज के मरीजों में कोई माइग्रेंट या बैरून मुल्क से आने वाला शामिल नहीं है और तमाम मरीज मुकामी हैं। आज के इजाफे के बाद जुमला 4,288 मुकामी अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले और माइग्रेंट्स 449 कोरोना मुतासरीन हैं। इस तरह तेलंगाना में जुमला मुतासरीन की तादाद 4,737 हो गई है।
संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में एक ही खानदान के 19 अफराद में कोरोना अलामत ने इलाके में सनसनी दौड़ा दी है। बल्दी व सेहत के हुकाम की बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक खानदान को आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनके टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पता चला है। इस खानदान की एक खातून की मौत के बाद दीगर अफराद खानदान में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि जहीराबाद की साकिन एक 55 साला खातून 9 जून को हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गई। इसी रोज रात में जहीराबाद में तदफीन अमल में आई। इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव की कोई अलामत नहीं थी, ताहम तदफीन के दूसरे दिन पता चला कि मैयत के टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ हुक्काम ने फौरी चौकसी अख्तियार करके अफराद खानदान को मिर्जापुर में वाक़ आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। 25 अफराद के नमूने टेस्ट के लिए हासिल किए गए, जिनमें से 19 में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा और तमाम अजला में इसका शिकंजा कसने पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने 15 जून से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के काम करने के क़ब्ल-अज़ीं के फैसले को मौखर कर दिया। अब तमाम ज़ेली अदालतों, ट्रिब्यूनल्स, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मेडिसिन आर्बिट्री सेंटर, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और स्टेट जुडिशियल एकेडमी में काम 30 जून तक मुअत्तल करने का फैसला किया गया। हाल ही में अदालत ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट, सीबीआई कोर्ट और रंगारेड्डी जिला, जहां लॉकडाउन की 28 जून तक तौसी की गई है, इसके सिवा पूरी रियासत में अदलिया के 15 जून से काम करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन अब 30 जून तक बंद रहेंगे। शादी के दूसरे दिन दूल्हे के कोरोना से मुतासिर होने का इंकशाफ होने के बाद दूल्हे को आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दुल्हन को होम क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि बारातियों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में पेश आया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के अवाम से अपील की कि वो दवाखानों में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का एहतराम करें और क़वाइद की पाबंदियाँ करें। दवाखानों में मारपीट के वाक़ात और डॉक्टर्स की हड़ताल के हालात के बाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर किसी के वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार या दोस्त सरकारी या खानगी दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं तो दवाखानों के इंतज़ामिया से ताउन करें। किसी भी शिकायत पर जज्बात में आने के बजाय मुतालिका हुक्काम से शिकायत दर्ज करवाएं। कानून के दायरे में इंतजामिया के जिम्मेदारों से शिकायत को रुजू करें। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में बिलखुसूस गांधी हॉस्पिटल, जो कोविड इलाज के लिए मुख्तस किया गया है, इसमें मरीजों के अटेंडर जज्बात में ना आए, डॉक्टर्स के साथ ताउन करें। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वजाहत की कि रियासत में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का कोई मंसूबा हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। सोमेश कुमार ने बताया कि कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद में मुकम्मल लॉकडाउन की अफवाहें गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दोबारा लॉकडाउन के निफाज का कोई मंसूबा नहीं है, इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।